एग्रीकल्चर। I'll take a book. सबसे पहली बात जो हमारे सामने आता है, the very first thing that comes into is India is actually an agricultural country. When we had studied chapter number 2 of economics, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा maximum employment is from agricultural sector. That is more than 60%. And India is considered as agricultural nation. Now, the very first thing that comes into is, in our country, agriculture has been practiced in the primitive way. There are many ways. If you go to America, if you go to New Zealand, मतलब वहाँ पर आपका जो agriculture है वो थोड़ा सा अलग है. They have the modern threshing machines, they have the modern harvesting machines, and definitely the labor intention या फिर जो labor output है वो ज़्यादा है. Because we are poor. Indian farmers are not that much rich. Yes, नहीं बिल्कुल भी नहीं है. See, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. अभी मतलब इन्हीं दिनों में, for the past few days, my younger daughter, she is a doctor, and she is planning to do her masters, right? अब यहाँ masters करने के लिए she requires around 35 lakhs. In the government college itself, it is around 20 lakhs. चलो, अब 20 lakhs मिलने के बाद, if she is a master, she is not going to earn that much. जबकि if she is going out, वहाँ simple काम, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, but they will be earning around 1 lakh rupees per month according to Indian rupee. तो जो आपका, that is what we say ना, cost of living, development, then technology, इसी में तो इंडिया आपका backward है. See, we are यहाँ पर, and moreover, still we are not actually able to understand the meaning of technology. अगर मैं किसी से बोलूँगी ना, I am technologically good, तो लोगों को ये लगेगा अच्छा इसको कंप्यूटर चलाना आता है और इसको मोबाइल चलाना आता है. Technology starts from everything. See, using a micro oven in your kitchen is technology. Using computers is technology. Using the digital platform for industries is technology. Using the modern, what we say, harvesting machines on our farms is technology. But हम technology को हमने बहुत छोटा एक word बना रखा है. And that is why still, and हमारे definitely बेटा हमारे farmers इतने rich नहीं हैं. The same thing what I told you that day, 10% of the total people are industrialists. And 90% people are MSME, small scale हो गया आपका, या फिर आपकी cottage industries हो गई. That means what is there? There is a difference between the rich and the poor. There is a difference between, and the same differences between our farmers also. The number of farmers who are rich proportionately वो बहुत कम है. और इसीलिए अभी हम टेक्नोलॉजी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका, that comes is primitive subsistence
भी कि मैम डज द क्वेश्चन कम फॉर 3 मार्क्स, तो ये वाला क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में डिफरेंसेस आए हुए हैं फॉर 3 मार्क्स। प्रिमिटिव मीन्स जहां आपका फार्म कम है, स्मॉल पैचेस। Secondly, you are using the old kind of equipment, tools. आपके जो है दाओस, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, हो दाओ digging tool, and most of the time the family or the community members are the laborers. They depend on the rain for the farming. And fourth, they use the manures. जो आपके manures आपको मिलते हैं वो they do not buy the fertilizers, they do not buy those what we call as the insecticides or pesticides. So that means the older method जो हम अपने घरों में भी use करते हैं, that is there. And if you go to Assam, you will find still the primitive subsistence farming अभी भी prevalent है। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया है, still it is prevalent there, right? The second one is आपका इसके अलग अलग नाम है, मतलब in the that day I told you in primitive subsistence farming we have crop rotation. The crops are rotated या फिर जो आपका एक particular land जो है that is left as fallow and then the agriculture is done on the remaining land. Once again जब यहाँ खत्म हो जाता है तो ये आपका घूमता रहता है। So we also call it as slash and burn. जो ये एरिया fallow है, इसको क्या किया जाता है during, मतलब जब it becomes good fertile, इसमें काफी घास आ जाते हैं तो इसको जला दिया जाता है। The area, that particular places, that particular area is burned. बर्न करने का फायदा क्या है? You get the ashes. आपको ashes मिल जाती हैं and उस ash के अंदर जो है the farmers जो होते हैं they sow the seed and that is why it is also called as slash and burning agriculture. आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, you can also see. Ashes is good for आपका जो है for the crops. या नहीं, खासकर हम लोग तो ये जो प्रेस वाले होते हैं ना, उनसे मैं ऐश लेकर आती हूँ अपने पौधों में डालने के लिए। It is good. It is good. It is there. It helps into sustaining. Then next is the different names for primitive subsistence farming. Slash and burn को हम झूमिंग भी कहते हैं। These are all 1 marker question. ये पूरा आपका 1 marker में आएगा in the MCQs. Then आपका इसका नाम रोको, this is in Brazil. आपके रोका नाम इसका है, मेसॉल, रे, these are some of the names. Even written India also, मतलब not only internationally, India में भी हम इसको दहिया, पमादाबी, कुमारी, ऐसे अलग अलग जो नाम है अलग अलग बेल्ट पर लेते हैं। So this is where the area is rotated using the slash and burn technology. This slash and burn technology जो था, actually it was abolished by the British. But जहाँ आपकी एरिया छोटा है, जहाँ गांव में छोटे छोटे खेत मिले होते हैं, वो लोग इसी को यूज करते हैं। Since they don't have the money to buy the fertilizers or the insecticides and what we call as organic farming, वो ये होता है। नेक्स्ट इज आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव का मतलब है जहां लेबर आपका ज्यादा है, where the labor, it is labor oriented. In the primitive subsistence the family members and the community members are there, लेकिन इसके अंदर हम लोग जो है लेबर्स को रखते हैं। 9th स्टैंडर्ड में हमने पालकपुर पढ़ा था, उसमें जो आपके लार्ज फार्मर्स होते हैं वो लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को यूज करते हैं एंड दिस क्रिएट्स enormous pressure on agricultural land. This is an MCQ question
कि कौन सा वाला है जिसकी वजह से आपके एग्रीकल्चर, क्योंकि वी आर यूजिंग व्हाट वी आर यूजिंग हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन हम यूज करते हैं, एंड दैट इज व्हाई आपका जो लैंड होता है उसके डिप्लीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज, ये आपका पहला था प्रिमिटिव, the second one is intensive. Now the question is, what is the meaning of intensive subsistence farming? Subsistence का मतलब होता है जो हम खुद के लिए कर रहे हैं, the one which we are doing for self consumption. Now what is the difference between primitive? इसमें whatever the farmer is doing maximum वो अपने लिए यूज करता है, इन द इंटेंसिव वो अपनी जरूरत को लेकर जो बाकी बच जाता है दैट इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर कमर्शियल पर्पस। दिस वी हैव डन इन द फर्स्ट चैप्टर पालनपुर, राइट। नेक्स्ट इज आपका आता है कमर्शियल क्रॉपिंग। कमर्शियल क्रॉपिंग के अंदर ही आपका एक और आ जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लांटेशन। The word commercial itself is selling कि ये जो क्रॉप्स होते हैं ये सबसिस्टेंस के लिए नहीं किया जा रहा, they are not grown for self consumption, they are grown for selling it। मतलब वो जो लैंड होता है उसमें जो भी आपके क्रॉप्स लगते हैं they all are sold in the market, और इसीलिए इन क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। We also call them as cash crops क्योंकि they are sold for cash आपका। Now it also differs from place to place। पंजाब एंड हरियाणा में राइस इज अ कैश क्रॉप, वहाँ राइस को बनाया जाता है स्पेसिफिकली टू बी, मतलब वहाँ पे उगाया जाता है स्पेसिफिकली टू बी सोल्ड इन द मार्केट। Whereas the same rice is a staple food for Tamil Nadu, then आपके ईस्टर्न रीजन जहाँ उनका मेन खाना है। स्टेपल मतलब the main food। नहीं, नॉर्मली मतलब मोस्ट ऑफ इट इज सबसिस्टेंस में आता है। यहाँ तो ये कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब है उसको हम अपने लिए यूज ही नहीं करते हैं, दे आर ग्रोन एंड सोल्ड। दिल्ली से व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स अमृतसर, आपका जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड है पूरा आपका बासमती राइस है। इंडिया गेट है वहां पर, लाल महल है आपका, देन वो एक और भी है बहुत फेमस ब्रांड, ऑल ऑफ देम आर देयर। किसमें बहुत डिफरेंस है। बासमती राइस आपका 500 रुपए किलो भी मिलता है। बासमती इज एक्चुअली उसका जो मतलब वो उसमें आपके जो है और फिर जो छोटे चावल होते हैं नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं उनको हम परिमल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो नॉर्मल में हम लोग घर में खाना बनाते हैं उसमें, एंड बासमती स्पेसिफिकली मेड फॉर द पुलाव बिरयानी होता है। एंड इंडिया इज आल्सो द वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस एंड दिस इज ग्रोन इन द वेल इरिगेटेड रीजन ऑफ आपका पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है। द नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन होता है जिसमें एक पूरे मतलब की जमीन को खाली करकर एक ही तरीके का one single type of crop is grown over a large area, जैसे बनाना प्लांटेशन आपका केरला में, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, ये सारे आपके प्लांटेशन होता है। इट इज मोर लेबर इंटेंसिव, इसमें भी आपके लार्ज प्लांट्स होते हैं, इसमें माइग्रेंट लेबर नॉर्मली ज्यादा काम करते हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी जमीन होती है कि वहां पे लेबर की कमी होती है, तो नॉर्मली लेबर जो है उनको माइग्रेट करके लेकर आते हैं। शुगर केन, रबर, राइस, देन आपका कॉफी, टी, बनाना, ये आपके कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। Yes, you want to say something? Now, this is the cropping आपका कहते हैं the types of agriculture that a country normally
follows. हाँ हाँ yes, हमारे यहाँ पर we are following primitive. Primitive is followed everywhere. Like Brazil is a small area. वहाँ भी it is not that much developed, so they are also following. हाँ वो तो है बेटा, पर नहीं हमारे यहाँ नहीं हमारे यहाँ मैक्सिमम हमारे यहाँ primitive and intensive है. Commercial crops normally government takes up. कमर्शियल क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट जो होती है काफी उस पर पैसा लगाती है. Whereas आपके जो इंटेंसिव होता है वो आपके लार्ज फार्मर्स होते हैं एंड प्रिमिटिव इज डेफिनेटली डन बाय द स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स. राइट. द नेक्स्ट हाँ क्रॉप रोटेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रिमिटिव फार्मिंग. रोका आपका जो नाम मैंने भी बताया था, स्लैश एंड बर्न, झूमिंग, ये सारे उसके नाम है. इन different parts of the world, different parts of our country, it is practiced in different ways. अगर आपके तो इस बार नहीं था, but in 9th standard normally we have a chapter of pasture. तो pasture जो community होती है, आपकी गुजर बकरवाला है there in the Ladakh region, then you have in the Maharashtra region आपके हैं, आपके कर्नाटक, तो everyone has a मतलब उनका एक pattern होता है. So that is how primitive is followed. The next comes is the cropping seasons of our country. हमारे यहाँ पर हमने 9th standard में पढ़ा था that monsoon is a unified bond. हमारे जितने भी agricultural calendars हैं, they are all associated with the climate. हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है उससे हमारा सब कुछ जो है it is associated. So the cropping pattern, the cropping pattern of our country जो है वो हमारा 3 में चलता है. That is आपका खारिफ, राबी and ज़ैद. खारिफ, Rabi and Zaid. In this particular context, इसमें concept में आपके crops का नाम दे दिया जाता है and you have to identify whether it is a Kharif or a Zaid. Normally एक आध तो ऐसे हैं जो दोनों हैं. खारिफ आपका Rabi जो है it is from winter. अक्टूबर जब आता है, अक्टूबर में इसको सो किया जाता है and it is harvested. अभी जो बैसाखी आएगी 13 तारीख को, it is a farmers festival and normally जो आपके farmers होते हैं pulses आपके then आपके अरहर ये सब चीजों को हार्वेस्ट करते हैं. wheat आपका ये सारा इस वक्त में आता है. and खारिफ आपका जो है it is sown when the monsoon comes. वैसे उनको summer crops कहते हैं when it comes in monsoon और सितंबर के आसपास में इनकी कटाई होती है. And rice is a kharif crop, whereas आपका wheat जो है वो आपका rabi crops है. हमारे इसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जहाँ आपके विंटर मतलब जो आपका wheat है वो सबसे ज्यादा रहता है. And kharif आपका it is onset of monsoon and it is harvested from September to October. आपका paddy यानी कि चावल, मेज, जौवर, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोया, ये सारा. हाँ अभी बता रही हूँ. Now in paddy crops एक important question है. In the paddy crops, paddy मतलब rice. असम के अंदर आपके एक स्पेशल तरीका मतलब there are 3 different types of paddy crop. Os, Ora and Os, Aman and Boro. Os, Aman and Boro. ये आपके मतलब इसमें आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. What are Os, Aman and Boro? They are the kind of kharif crops. They are the kind of paddy crops. चावल की मतलब ये वैरायटी. नेक्स्ट इज आपका अप्रैल में आपकी कटाई होती है राबी क्रॉप्स की, अप्रैल मई तक. फिर मई जून कोई भी नहीं, जब तक आपकी बारिश नहीं आती. जून का महीना जो है तैयार करते हैं. तो बीच में जो शॉर्ट पीरियड होता है उसमें टोमेटो, कुकुम्बर, इस तरीके के जो आपके वेजिटेबल्स हैं या फिर जो क्रॉप होते हैं उनको ग्रो करते
called as Z. Watermelon, muskmelon, cucumber, fodder crops. Fodder मतलब चारा. And which crop is आप मतलब कि हम सब ऐसा कौन सा क्रॉप है जो कि चारा है और हम भी खाते हैं उसे? मैम मेज. यस राइट, मैंने आप लोगों को बताया हुआ. इट इज मेज, मक्का. इट इज मॉम क्रॉप, पॉप क्रॉप, बेबी क्रॉप. मक्का जो है इट इज यूज्ड एज मक्के की आटा, ठीक है. देन मॉम कॉर्न यानी कि आपका जो बड़े वाला भुट्टा. देन बेबी कॉर्न जो आप लोग खाते हो. देन पॉपकॉर्न व्हेन वी पॉप इट अप. देन आपका जो उसके जो छिलके होते हैं और उनमें से वो निकालते हैं वो होता है, उनको यूज किया जाता है एज फॉडर फॉर द एनिमल्स. उसको जो है जो छिलके निकलते हैं उसको यूज किया जाता है एज अ फॉडर फॉर द एनिमल्स. सो मक्का जो है उसका मम्मी पापा दादा सब कुछ हम खाते हैं एज वेल एज इट इज ऑल्सो यूज एज अ फॉडर. ठीक है ना. जब मक्का खाओ तो सोच लेना कि वी आर ऑल्सो एनिमल्स. नाउ इंडिया के अंदर के मेजर क्रॉप्स. इंडिया के अंदर के मेजर क्रॉप्स. वी आर हैविंग फूड क्रॉप्स एंड वी आर हैविंग नॉन फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स जिनको हम यूज करते हैं एज स्टेपल फूड. वी आर यूजिंग इट फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट ऑल्सो. हम उसको अपने लिए सीधा स्टेपल यूज करते हैं. दे आर ऑल फूड क्रॉप्स. एंड नॉन फूड आपके डायरेक्टली जाते हैं फॉर द कमर्शियल यूज. लाइक आपका रबर. रबर इज अ नॉन फूड क्रॉप. जूट इज अ नॉन फूड क्रॉप. इनको हम यूज करते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पसेस. राइट. द वेरी फर्स्ट इज आपका wheat. wheat आपका रागी. एंड इंडिया के अंदर इट इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट. राइस आपका पूरा सदर्न बेल्ट, आपका पूरा ईस्टर्न बेल्ट दैट इज देयर हमारा जो है स्टेपल फूड आपका राइस है. वेयरएज आपका पूरा नॉर्दर्न बेल्ट स्पेसिफिकली टुवर्ड्स हरियाणा पंजाब आपका wheat इज द स्टेपल फूड. इट रिक्वायर्स कूलिंग ग्रोइंग सीजन. तभी सर्दियों में आता है. एंड सनशाइन होना जरूरी है. ये वाला आपके जो है टेबल बनकर आता है. अ टेबल में कम ऐसा एक टेबल बना हुआ आ जाएगा. उसके अंदर लिखा होगा डैश 50 to 75 सेंटीमीटर रेन. उसके बाद लिखा हो जाएगा इसमें आपका ब्राइट सनशाइन. आपको जो है यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्रॉप. It can come in this manner, right? That means it is wheat. Temperature आपका 50 to 75. And the two main आपके यहाँ पर हमारे यहाँ पर है गंगा सतलुज बेल्ट. That is आपका पंजाब. That is the main area. And second is आपका this one जो हमारा वाला बेल्ट है. बिहार, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का जो व्हीट है इट इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट व्हीट इन द वर्ल्ड. आशीर्वाद आटा का अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना उसके अंदर आपको बताया इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट फॉर द व्हीट. द गंगा सतलुज बेल्ट इन बैक रीजन एंड आपका जो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश वाला रीजन. राइट. मिलेट्स आपके बहुत सारे क्रॉप को बोलते हैं. जितने भी आप बॉर्नविटा वगैरह पीते हो ना, कॉम्प्लान बॉर्नविटा, इन सब में आपके मिलेट्स होते हैं. पुराने जमाने में दादी वगैरह तो इनको जो है कच्चा उसको पीस कर दे यूज्ड टू मेक द सेरेलेक बनता है ना बच्चों के लिए. दैट सेरेलेक कंसिस्ट ऑफ द मिलेट्स. जौवर, बाजरा, रागी. रागी हमारे तमिलनाडु में बहुत फेमस है. हमारे घर दूसरे दिन किसी का पेट खराब है तो दादी के लिए रागी का वो बना के दे देती हूँ. कहते हैं ना पुडिंग जो होता है ना वो बना के दे देती हूँ. इट इज ऑल्सो नोन एज स्पोर्स. मोटे मोटे होते हैं. रागी इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ड्रफेज. जौवर हमारे यहाँ थर्ड मोस्ट है. एंड जौवर हमारा है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. बाजरा
बाजरे की रोटी तो सबसे ज्यादा फेमस है, आपके गुजरात है, महाराष्ट्र है, देन राजस्थान, वहां पे सबसे ज्यादा आपका फेमस है बाजरे। रागी आपका इट इज इन द रेड एंड ब्लैक सॉइल, लोमी सॉइल है, एंड एज आई सेड इट इज इन कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड में है, लेकिन उन जगहों पे आपके ज्यादा है। हमारे यहाँ रागी बहुत फेमस है। यार हमारे वहाँ तो उसके ड्रिंक्स अलग से मिलते हैं, जो रागी का ड्रिंक होता है, दिस इज यूज, बट वैसे हम लोग मिलेट्स यूज करते हैं इन ऑल आवर, जितने भी हमारे ये जो ड्रिंक्स होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, जैसे आपका कॉम्प्लान, बोर्नविटा, इनमें यूज होता है। इट इज वेरी गुड। मेज, इट इज अ फॉडर एंड फूड, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। इट ग्रोज बिटवीन 21 to 27 डिग्री, एंड कुछ जगहों पर ये राबी क्रॉप भी है। वैसे तो ये इट इज अ खारिफ क्रॉप, बट इन बिहार इट इज ऑल्सो है राबी क्रॉप। इट हैज बीन यूजिंग HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो यूज करते हैं। कर्नाटका, यूपी, बिहार, एपी जो है गया, ये आपके मैप का क्वेश्चन हो सकता है। पल्सेस, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर्स ऑफ पल्सेस। हमारे आप किसी भी शादी में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, दाल आपको मिलेगी ही मिलेगी। The only thing is, हमारे साउथ में आप जाओगे शादियों में, दाल बिल्कुल आपको प्लेन मिलेगा, इट विल नॉट बी कंसिस्टिंग ऑफ एनीथिंग ऑन द गो, मतलब वो दाल इतनी सी डालते हैं। इफ यू गो टू आंध्र प्रदेश, वहां पर आपको जो दाल है मतलब उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, उसमें थोड़ा फ्लेवर ऐड करते हैं। इफ यू कम टू आर नॉर्थ इंडिया, यहाँ पे दाल मखनी भी है, दाल फ्राई भी है, आपके यहाँ पर दाल मतलब की जो अरहर वाली है वो भी है। So we are the largest consumers as well as the producers of pulses, and we are having a number of pulses. उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, then आपके मटर की दाल, आपके everything is used. Yes, yes, yes. Temperature and soil. Soil and temperature. क्यों? Alluvial soil is very fit for wheat. हाँ, yes. Alluvial. Yeah. Yes. We can grow. That is why pulses आपका है, देखो आप. Now pulses is a leguminous, मतलब it helps, जो मतलब कि restores the soil fertility by fixing the nitrogen. आपने देखा होगा ना, उसके वो निकलते हैं, अगर हम उनको क्या है, इसलिए हमको थोड़े दिन के लिए सूखा छोड़ते हैं तो वो लेगूम निकालते हैं, दैट इज इट इज अ लेगुमिनियस। एंड इन इंडिया मध्य प्रदेश मैक्सिमम, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इसमें से मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान का बेल्ट आपका अलुवियल के अंदर ही आता है। मतलब एक पार्ट आपका डेजर्ट में आता तो वहां तो ये ग्रो करता ही नहीं है, द पार्ट विच इज Now, other than grains, ये तो होते जो हमारे मेन स्टेपल क्रॉप्स थे, जिनको हम खाने में यूज कर रहे हैं। राइस को हम यूज करते हैं एज अ स्टेपल फूड, एंड शुगर केन को उसको यूज करते हैं, व्हीट को यूज करते हैं। राइस आपका it is the second largest producer than we are there after China, but it requires high annual rainfall, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। मतलब पहले हम छोटे थे तो हम देखते थे, अभी मैं देखती हूँ जो राइस होता है उसको जब वो 1 इंच तक ग्रो करता है, then it is left in the water, क्योंकि उसको जो है वाटर कंटेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। Now due to high irrigational facilities, the rice is now it is easily grown in Punjab area. Development of dense network of canal irrigation and tube well has made it possible to grow rice in areas of less rainfall as Punjab, Haryana, UP and Rajasthan. ठीक है, ये पहले होता था, but after what we call as the green revolution, the growth has increased. Sugar cane, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी शुगर केन है, इसमें भी है। शुगर केन हमारा जो है पूरे साल आता है, लेकिन हम उसको एक बार काटते हैं, दैट इज अराउंड दिसंबर के महीने में।
अभी आपने देखा होगा गन्ने के जूस वाले बहुत सारे आपके बैठते हैं, हर जगह पे होते हैं। इट रिक्वायर्स 21 to 27 डिग्री एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100। इसको हम तरह तरह के सॉइल्स में ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, बट एट द सेम टाइम कर्नाटका, महाराष्ट्र, दे आर ऑल्सो देयर। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, लेकिन गुड़ और जो आपका खंडसारी होता है, जो उसके पाउडर होते हैं, उनमें हम लोग जो है नंबर 1, राइट। सेकेंड इज नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स, जितने भी हमारे तेल, चाहे वो कैस्टर ऑयल हो। कैस्टर ऑयल कहाँ यूज होता है? भूमि। क्या क्यों आपकी गाड़ियों में कैस्टर ऑयल नहीं डलता? आपकी गाड़ियों में भी कैस्टर ऑयल डलता है, हाँ, इंजन में। तो गाड़ी क्या है? गाड़ी में। एंड कैस्टर ऑयल इज आल्सो यूज्ड फॉर आईज। आपकी जो काजल बनता है ना, उसमें कैस्टर ऑयल डलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ काजल। काजल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ भाई, डलता है। आई टेल यू, ये देयर इज अ प्योर कैस्टर ऑयल अवेलेबल इन द मेडिकल शॉप। हम लोग जब छोटे होते थे, हमारी मम्मी रात को हमारे आंखों में कैस्टर ऑयल डाल देती थी सोने से पहले, जिससे कि हमारी आंखें साफ हो जाए। एंड हमारे तमिल में तो देयर इज अ सेइंग, भाई ये तो ऐसे देख रहा है जैसे आंखों में इसने कैस्टर ऑयल डाल रखा हो, क्योंकि इट क्लियर्स द आई विजन, द प्योर कैस्टर ऑयल। सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ कोल। कोल मतलब काजल। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्यों भाई आप कोल मतलब कोल नहीं, COAL, काजल को यूज करते हैं। उसमें कैम्फर डलता है आपका, कैम्फर मतलब आपका कपूर, देन आपका बादाम, और जो आपका ये वाला कैस्टर ऑयल होता है उसे मिक्स करके पुराने जमाने में बनाते थे। उस वक्त में तो हम इसको काजल नहीं बोलते थे, इसको सूरमा बोलते थे, बट लेटर ऑन उसका व्हाट वी कॉल रिफाइंड फॉर्म आ गया काजल। सो दैट इज हाउ इट वाज यूज्ड फॉर द आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। अब तो हम उसे अपनी सुंदरता के लिए यूज करते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अब नहीं यूज करते बिल्कुल, बट प्योर होना चाहिए। इट इज अवेलेबल इन द मेडिकल शॉप, इट इज इन दिस बॉटल आपके, दैट इट इज यूज्ड इन दैट। तो कैस्टर ऑयल आपका हो गया। देन आपके जितने भी हैं, सनफ्लावर ऑयल आपका यूज होता है। राइस ब्रान, राइस का जो छिलका होता है ना, जब वो निकल जाता है तो उससे ऑयल निकाला जाता है, राइस ब्रान ऑयल। सरसों का आपका तेल, ग्राउंडनट ऑयल आपका। सो वी आर हैविंग मेनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स फॉर ऑयल। ग्राउंडनट आपका खारिफ है, एंड इट इज गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। वेरस आपका लिंसीड, आपका मस्टर्ड यानी कि सरसों आपका राबी है, विच इज देयर इन पंजाब। सीसमम आपका होता है तिल का तेल, तिल, and that is basically in north and rabi in south, and castor seeds वो दोनों है। That is also, I said, castor oil is used in the vehicles also. It is used in different purposes. Tea, tea आपका मेजर आपका जो है वो है असम, जो हमने पढ़ा था असम, टी फ्रॉम असम, जो राजगीर एंड कंजूर वाला चैप्टर था, राइट। टी आपका असम, दार्जिलिंग, यानी कि ईस्टर्न साइड में आपके ज्यादा है। दार्जिलिंग भी आपका वन ऑफ द मेजर है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। इट वाज अ प्लांटेशन। नहीं, हम तो नेक्स्ट आ गए ना, ऑल सीड्स तो खत्म हो गए। वी हैव कम टू द नेक्स्ट। इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल, यानी कि आपके नीचे भी है, बट मोर आपका केरला के अंदर है। यू हैव द टी प्लांटेशन, बट मोर आपके हैं टुवर्ड्स असम। एंड यहाँ पर आपके जो टेंडर लीव्स होते हैं, बिल्कुल नए लीव्स, उनको किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। वंस अगेन इट इज अ वन मार्कर क्वेश्चन। आपका स्किल्ड लेबर होता है, इसको पहले तोड़ा जाता है, देन इसको जो है दे आर डिवाइडेड टू, मतलब आपने देखा होगा चाय की पत्तियां भी होती हैं, आपका पूरा चाय पत्ती भी होता है, एंड देन यू आर आल्सो नाउडेज हैविंग दैट वो डिप वाला भी होता है। तो देयर आर डिफरेंट।
असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला आपके कुछ हैं, प्लस देयर आर मेघालय है, आंध्र प्रदेश है, इनमें भी आते हैं बट इट इज नॉट दैट मच। ये वाले जो पहले 3 बताए हैं ये एक्सपोर्ट के लिए भी यूज होता है। कॉफी, कॉफी एज आई टोल्ड, बाबा बुदन हिल्स, ये आपका जो है ओरिजिनली इट वाज ब्रॉट बाय द अरब्स। इनको कहा जाता है कि ये जो है यमन से लेकर आए गए थे एंड हमारे यहाँ लगाया गया था एंड नाउ कॉफी इज वन ऑफ द हमारे लिए इम्पोर्टेंट बेवरेज है। आपके पेपर में आ सकता है नेम एनी 3 बेवरेज क्रॉप्स, नेम एनी 3 बेवरेज, बेवरेज मतलब जिसको हम घोल के पीते हैं, टी, कॉफी, कोको, टी, कॉफी, कोको। कोको आपकी बुक में नहीं है बट इट इज देयर इन द वेस्टर्न हिल्स, जो वेस्टर्न घाट है वहां पे आपके कोको दे आर यूज्ड। Caffeine is of course that is why when we are eating or when we are drinking the coffee वो हमारी नींद को भगा देता है and coffee is an addiction, coffee is an addiction means if you start drinking coffee आप उसके बिना नहीं रह सकते हो। I have an example of my mother, मेरी मामा को सुबह अगर कॉफी नहीं मिलता था ना तो she will lose her temper like anything, मतलब उनको ये भी नहीं पता होगा सामने कौन है उनके ऊपर, उनको चाहिए होता था and she would be drinking twice in the morning and twice in the evening। हमारे घर में मैं जब तक मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो आई वाज नॉट, मम्मी ने मुझे कॉफी की आदत नहीं डाली तो आई वाज अ बोर्नविटा पीती, तो बोर्नविटा पीती थी। मैरिज हुई तो मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाते थे तो कभी बोर्नविटा पीती हूँ, फिर मेरी कॉफी की आदत लगी। देन आई हैड अ सर्जरी ऑफ अपेंडिसाइटिस, उसके बाद मैं सुबह भी एक ही बार पीती हूँ पूरे दिन में, एक कप इतना सा एंड देन नो कॉफी नथिंग। हाँ आजकल थोड़े पेप्सी की आदत लग गई है, नॉट टू बी नॉट मेंशन, अभी मैंने थोड़ा लेमन पे किया है शिफ्ट ओवर बट यस कॉफी इज एन एडिक्शन, दी कॉफी इज एन एडिक्शन। नाउ ये आपके थे जो आपके प्लांटेशन में आ जाते, दैट इज आपका शुगर केन, ऑयल हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर, यानी कि जो आपकी नर्सरी हम बोलते हैं, सब्जियां उगाना, ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे ऑल कम अंडर द हॉर्टिकल्चर। क्या कह रहे हो चाइना में? वो तो सब कुछ खाते हैं, उनके खाने की वजह से तो हम लोग ये मास्क पहने बैठे हैं, उनके खाने की तो वजह है कि हम ये मास्क पहने हुए बैठे हैं और हम ऐसे बैठे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग करके, because they have become the producers, they have become the exporters, they have become the exporters, they are not using it but they are exporting it, yeah, for them everything is a commercial crop। Horticulture India is a, हम जो है second largest है। We have mangoes, आपका महाराष्ट्र, लखनऊ आपका यूपी वाला बेल्ट वो भी है, कर्नाटका के भी आपके मैंगोज बहुत ही फेमस होते हैं, हम लोग तमिल में उसको बैंगलोर मैंगो बोलते हैं, they are very special, मतलब आप उसके अचार अगर बनाओगे उसका जो टेस्ट है ना वो यहाँ दिल्ली में कहीं नहीं मिलता, हम स्पेसिफिकली when we go to Chennai we buy it। देन आपके जो है ऑरेंजेस, नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, चेरापूंजी अगेन इज फेमस फॉर आपके ऑरेंजेस, केरला बनाना, देन आपके लीची ग्वावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पाइनएप्पल्स आपके मेघालय, ग्रेप्स आपका एपी, एपी के अंदर आपके जो है जो ग्रीन ग्रेप्स है वो भी एंड जो ब्लैक ग्रेप्स है ना वो इतने बड़े बड़े मिलते हैं, इतने बड़े बड़े एंड दोस ग्रेप्स आर वेरी स्वीट, यहाँ तो वो खट्टे आते हैं वहाँ वो स्वीटनेस में आते हैं। देन यू हैव एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट, वॉलनट, आपके जितने भी हिमाचल वाला एरिया है वहाँ पर, एंड सम ऑफ दीज फ्रूट्स आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट्स, इनको हम ड्राई करके यूज करते हैं
एंड सैफरन आपका जो है वो आपका जम्मू। सैफरन बताओ। सैफरन इज केसर। केसर आपके जो रबड़ी फलूदा में डलता है, बिरयानी में डलता है। दे आर स्मॉल थ्रेड्स, छोटा सा इतना सा डब्बा आपका जो है 300 रुपए का। इट्स अ वायलेट कलर फ्लावर, उसके जो अंदर होते हैं ना उनमें से निकाला जाता है। बहुत कॉस्टली। इट्स अगेन अ वेरी लेबर इंटेंसिव एंड वेरी कॉस्टली। हमारे यहाँ जम्मू से आता है। देन we are also having the vegetables, peas, cauliflower, onion. Yeah, they are all brinjal. We are having all kinds. पहले तो ये जो आपके थे what we call as कुछ फॉरेन फ्रूट्स होते थे, but now we are on bell peppers. हमारे पहले इंडिया में नहीं था, but now bell peppers we have started. Then आपका broccoli. These are now part of our horticulture. बेल पेपर्स आपके जो लाल और येलो कलर के शिमला मिर्च आते हैं उनको बेल पेपर्स बोलते हैं। इधर नीचे उतरना, कल ही मैं खरीद के गई हूँ, नीचे उतरना अपने इंस्टीट्यूट से जो राइट फॉरेस्ट मेरे मार्केट के साथ में जो सब्जी होता है ना उसके पास करो। आपके सारे पिज्जा में डलते हैं भाई येलो कलर एंड वो आपके सारे लेट्यूस। यू माइट हैव बट यू माइट हैव नॉट। एक्चुअली आपने उसे उस तरीके से देखा नहीं होगा, आपने सोचा होगा कुछ और है। They are bell peppers. They are called as bell peppers. So bell peppers हैं आपके, मतलब now we have started. कीवी इंडिया का फ्रूट नहीं है, it is अभी भी हम लोग जो है इसको मंगवाते हैं। That is strawberry. It is there. It is there in the हिमाचल कुल्लू वहाँ वाले रीजन में है, शिमला वाले रीजन में है। You can see the वहाँ पे आप पेड़ भी देख सकते हैं। And what is Arabi called in English? Arabi beans. Beans तो आपके अलग अलग होते हैं। क्लस्टर बीन्स आपके हो जाते हैं सेम, आपका फ्रेंच बीन्स हो जाता है जो बीन्स होते हैं। कोलोकेशिया, या इट्स कॉल्ड एज कोलोकेशिया। एक्चुअली मेरी और मेरी डॉटर की आदत है, हम लोग वहाँ ना रिया कोलोकेशिया ले आना। हमारे हस्बैंड उस दिन देखे क्या लगाना कि कौन सा केशिया लाना। नेक्स्ट इज आपका नॉन फूड क्रॉप्स। इसके साथ हमारा एक लास्ट रह जाएगा, टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा। नॉन फूड में रबर विच इज यूज, आपका इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये वाला जो आपका दिस ग्राफ है, दिस कम्स विच शोज द कंजम्पशन ऑफ रबर। मतलब रबर हम लोग यूज करते हैं फॉर द ग्लास, रबर हम यूज करते हैं नीचे मैट के लिए यूज करते हैं। रबर इज यूज्ड एज अ मैट्रेस के लिए यूज होता है, टायर के लिए यूज होता है, बेल्ट के लिए यूज होता है, फुटवेयर के लिए यूज होता है, जो कैमल के ऊपर जो बैग लगता है उसके लिए यूज होता है। सो रबर इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एक बार आया था राइट द डिफरेंट यूजेस ऑफ रबर। एंड रबर आपका जो है एवरग्रीन आपके जो फॉरेस्ट है यानी कि तमिलनाडु, केरला, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पर आपका जो है रबर प्लांट। देन आपका मेघालय का भागो, यहाँ पे आपको रबर है। एंड दिस हैज आल्सो कम इन द मैप। ये आपका मैप का भी क्वेश्चन है जिसमें तमिलनाडु को मार्क किया हुआ था रबर प्रोड्यूसर एंड यू हैव टू टेल व्हिच इज दैट स्टेट। आपके अगर मैप के अंदर इधर आता है तो तमिलनाडु है, इधर आता है तो केरला, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार तो यू विल फाइंड आउट। फाइबर जो हम यूज कर रहे हैं फॉर द क्लोथ्स, आपका कॉटन, जूट, हेम्प। हेम्प इज अ काइंड ऑफ, एक हम इसको ड्रग के लिए भी यूज करते हैं बट इट इज आल्सो यूज फॉर द टेक्सटाइल। हेम्प, HEMP। नहीं आप नहीं भाई, HE। नेचुरल सिल्क। एंड सिल्क कौन से सिल्क को बनाने को हम कहते हैं? सेरीकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्क worm for the production of silk fiber is called as sericulture. It's a 1 marker question. और सिल्क हमारे यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में भी है। Why I am telling this is a map question. जम्मू कश्मीर में भी आपके, देन अगर हम लोग डाउन स्टेयर्स आते हैं उत्तर प्रदेश में बनारस सिल्क है आपका,
देन आपके मध्य प्रदेश में आपका चंदेरी सिल्क है, देन उससे भी नीचे आते हैं माहेश्वरी सिल्क है, देन मैसूर सिल्क है, तमिलनाडु में कांचीपुरम सिल्क है. So we are having a number of silk industries in the country. Cotton, India is said to be the home of cotton plant क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पूरा बेल्ट है गुजरात का, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, ये आपका ब्लैक कॉटन सॉइल से आता है, the Deccan Plateau. And it can come as a 3-marker question to write down. Write the geographical location and condition required for growing cotton. 210 days बिना फ्रॉस्ट के इसमें जो है इसको डेज चाहिए होते हैं, ब्राइट सनशाइन चाहिए होता है एंड लाइट रेनफॉल चाहिए, राइट. जूट, इट इज कॉल्ड एज द गोल्डन फाइबर. पहले तो हमारा जूट इंडस्ट्री काफी डिक्लाइन था, बट नाउ ड्यू टू द नो से नो टू प्लास्टिक्स, देन मोर अवेयरनेस, जूट इंडस्ट्री हमारा फिर से आया. And it requires high temperature आपका जो है. And before independence, India was number 1, but now we are standing on number 2 or 3. अब तो बांग्लादेश में हमारे मैक्सिमम जूट मिल्स हैं. वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय जो आपका ईस्टर्न साइड है. Yes, you have, yes. Then jute is used for gunny bags, mat, rope, आपके जो ये आर्टिस्टिक इफेक्ट होते हैं इन सब के लिए यूज होते हैं, ठीक है. नाउ दीज आर द इम्पोर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न, द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री. नाउ व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन? इतने सालों में एग्रीकल्चर हैज बीन द मेन सेक्टर ऑफ इंडिया. सो व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल मतलब उनके लिए ऐसी क्या चीजें सेटअप की गई हैं जो एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को देखें. दिस कम्स इन अ 5-marker क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड. ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है. ये क्वेश्चन देखा आपने? द वेरी फर्स्ट अभी क्या है हमारे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड, ये आपका स्टार्ट हुआ है. देन किसान क्रेडिट कार्ड है स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड फॉर द किसान, फॉर द फार्मर. अभी क्या दे हैव अ लिमिट, उनको ज्यादा नहीं है. हाँ बेटा, हाँ, दैट इज ओनली फॉर द फार्मर. एंड उसके अंदर जो लिमिट होता है वो 10,000 फिर 20,000, जिससे कि वो लोग अपने सीड्स, अपना जो फर्टिलाइजर्स है इनको यूज करें, उनके लिए वो यूज करें. इट डजंट हैव अ वेरी हाई अमाउंट. देन आपका ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दैट वाज आल्सो अ मेजर फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. उसके अंदर आपके HYD सीड्स आपके हो गए, देन आपके फर्टिलाइजर्स हो गए. HYD सीड्स इज गिवन एट अ लेसर प्राइस, सब्सिडाइज्ड प्राइस में दिया जाता फार्मर्स को. ग्रामीण बैंक जो है उसको सेटअप किया गया है. देन वी आर आल्सो सेइंग जीन रेवोल्यूशन, आजकल जेनेटिक रेवोल्यूशन कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो कि हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड्स, 2 सीड्स को मिलाकर एक सीड ऐसे जो है मतलब मिक्स कर रहे हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को मिला के. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग आल्सो. प्लस वी आर आल्सो हैविंग द मतलब कि जो हमारे व्हाट वी कॉल एज दी दूरदर्शन इज सेटअप. दूरदर्शन के अंदर न्यूज आते हैं, गवर्नमेंट जो MSPs को अलाउ करता है, जो अनाउंस करता है, दैट इज अनाउंस. मॉनसून के फोरकास्ट को उनको दिया जाता है. These are some of the measures that they have taken. You want to say something? In the coming region, in the coming area, or sorry, in the coming days, अगर हम जेनेटिक फार्मिंग को लें, जेनेटिक आपके हाइब्रिड आपका हो गया. देन आपके स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आजकल बहुत ज्यादा ध्यान किया जा रहा है. ऑर्गेनिक टेक्स टाइम, ऑर्गेनिक टेक्स सम मनी, ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन उसके ऊपर जो है इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू इन्वेस्ट. अगर इन चीजों को, आपका कौन है बोनी, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी, और उसका जितना फार्म है दैट इज एक्सपोर्टेड टू दुबई. उसका इतना बड़ा फार्मिंग हाउस है ऑर्गेनिक में.
he is having in उत्तर, हाँ MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, he is having, वो तो आजकल वही तो काम करता है, मतलब एक तो आता है एडवर्टाइजमेंट में और दूसरा वो उसका काम है, he is having a very big, मतलब उसको तो बहुत बड़ा है, and he is one of the largest exporters of organic farmer to Dubai, उसके जो maximum है वो दुबई जाता है. So government is giving the subsidy for organic farming, genetic engineering, then आपके मतलब कुछ आपके इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं, ग्रामीण बैंक आपका सेटअप किया है, किसान क्रेडिट क्रॉप इंश्योरेंस आपका, ये सब जो है they are some of the reforms that the government has taken in the for the मतलब कुछ लोगों का मानना है एग्रीकल्चर has a bleak future, bleak मतलब खाली, लेकिन the government is trying to ensure MSP आपका वही है. और ये जो फार्मर्स अभी हमारे स्ट्राइक पर है ना, they are against some of these policies जो गवर्नमेंट उनमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है. Once genetic farming comes into India will also be technologically आपका हो सकता है. Then the government is also trying to set up the bank जहाँ आपके threshing machines हो गए, आपके ट्रैक्टर्स हो गए, आपके इरिगेशनल पंप्स हो गए, इनको जो है सब्सिडाइज फार्म में दिया जाए. Right? This is what we call as agriculture.